हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन लिया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आपको कल सॉल्व करने के लिए दिए थे. So we are discussing the some questions, and some questions we have to solve at home. So today we are taking the method to solve the quadratic equations. There are actually various methods to solve the quadratic equation, but for 10th standard, especially they use the two methods to solving the quadratic equation. First one is factorization method, and second one is formula method, that is also said to be Sridharacharya's formula, but it is generally called as a formula method. Completing square method skip hua hai. Okay, so there are the two methods, and then we are going toward the roots, nature of roots of the quadratic equation, and then going toward the word problems. So today we are taking the factorization method. Actually factorization method है ना, आपको 9th में भी था इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, 8th में भी अपने स्टडी किया है. इट शुड बी इन 11th एंड 12th आल्सो. ओके, थोड़ा अलग अलग वजह से ये आते ही रहेगा. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड टुडे वी टेकिंग फॉर द फैक्टराइजेशन मेथड, टुडे टेकिंग द 4 क्वेश्चंस, एंड फ्रॉम दिस 4 क्वेश्चंस टोटल फैक्टराइजेशन मेथड इज बेस्ट. ओके, ये 4 क्वेश्चंस हम एक बार स्टडी करेंगे ना, तो फैक्टराइजेशन मेथड का कौन सा भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं. ओके, so let us start the factorization method. Okay, factorization method. Factorization method of quadratic equation to solving the quadratic equation. For example, I am taking, we know the general form of the quadratic equation is ax square plus bx plus c is equals to 0. A, B, C are the real numbers. A is rather than 0. B and C are the real numbers. A is called as the coefficient of x square. Bx is the middle term, and C is the constant term. So I am taking the very simple question for our convenience कि कैसे solve करना है इसके लिए. Okay, so x square plus 13x plus 30 is equals to 0. This is our first quadratic equation. X square plus 13x plus 30. So what is the coefficient of x square? 1. अब इसमें एक होता है कि coefficient of x square it should be 1 rather than 1. 1 or rather than 1. तो हम पहले क्वेश्चंस ले रहे coefficient of x square as a 1. कौन से क्वेश्चंस ले रहे? coefficient of x square as a 1. 1 ले रहे हम पहले, तो उसका स्टडी करें. कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 है. देन वी आर गोइंग टुवर्ड द मिडल टर्म एंड कांस्टेंट टर्म. अब हम फोकस करेंगे कांस्टेंट टर्म. किसको? कांस्टेंट टर्म को. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. अब इसको थोड़ा ध्यान से स्टडी. कांस्टेंट टर्म को अगर मिडल पॉजिटिव साइन है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1, अगर कांस्टेंट टर्म को कौन सा साइन है? पॉजिटिव साइन है. देन वी हैव टू टेक द फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म such that addition of factor is equals to middle term. So if constant term has positive sign, we have to take the factors of constant term such that addition of factors is equals to middle term. Are you got it? कब? अगर constant term को positive sign है, तो उसके ऐसे factors लेना है हमको, factor का addition आना चाहिए middle term. Okay, so take the factors of 30 such that their addition is equals to 30. अब 30 के फैक्टर्स क्या आते हैं? 6 5 into 5 आता है, but 6 plus 5 क्या है? 11. But what we need? 30. Are you got it? So second पेयर लेंगे हम इसके 10 into 3. 10 3s are 30. 10 plus 3 क्या आता है? 30. तो हमको मिल गई जोड़ी. हमको जोड़ी मिल गई. क्या जोड़ी मिल गई? 10 and 3. We get the factors 10 and 3. So we taking the factors as 10 and 3, और दोनों को मिडल टर्म का साइन चाहिए. मतलब क्या चाहिए? पॉजिटिव साइन. ओके, so we taken the x square plus 10x plus 3x plus 30 is equals to 0. Okay, are you got it? If x अगर x square का कोएफिशिएंट 1 है, तो कांस्टेंट टर्म को दो पॉसिबिलिटीज है साइन के, एक है पॉजिटिव और एक है निगेटिव. तो हमने अभी स्टडी किया
पॉजिटिव अगर साइन है तो क्या कर सकते हैं, वी हैव टू टेक द फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म, ओके, सच दैट द एडिशन ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल्स टू मिडल टर्म। ओके, नेगेटिव है तो क्या देखना है, बाद में स्टडी करेंगे, क्योंकि दो ही पॉसिबिलिटीज है, एक तो साइन पॉजिटिव होगा या साइन नेगेटिव होगा। ओके, सो वी टेकन द x कॉमन, क्या कॉमन निकालें यहाँ से, x कॉमन निकालेंगे, वी टेकन द x कॉमन, x इन ब्रैकेट x प्लस 10 प्लस 3 कॉमन निकालो, क्या मिलेगा, x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे x प्लस 10 है, यहाँ पे भी x प्लस 10 है, दोनों में से एक x प्लस 10 कॉमन निकालेंगे, आगे x प्लस 10, तो सेकंड ब्रैकेट मिलेगा x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। और यू नो if the product of two term या two numbers is 0, then first one is 0 or second one is 0 or both are 0. Okay, so we don't know which one 0, that's why we're taking x plus 10 और x plus 3 का प्रोडक्ट 0 आ गया, हमको पता नहीं कि कौन 0, तो हम ले रहे, therefore we considering that x plus 10 is equals to 0 or x plus 3 is equals to 0. Okay, therefore what is the value of x plus 10 convert into minus 10 or x is equals to minus 3, therefore solution क्या मिल गया हमको, minus 10 comma minus 3, x has the two values, x is equals to minus 10 comma minus 3, दो values ले सकते हैं आप, x दो values आ गए, minus 10 minus 3। अगेन हमने क्या लिया, कांस्टेंट टर्म को क्या साइन है, पॉजिटिव साइन है। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 है, तो कांस्टेंट टर्म के हमने फैक्टर लिए जिनका एडिशन क्या आना चाहिए, मिडल टर्म। अब सवाल ये है कि मिडल टर्म को हमेशा पॉजिटिव साइन होना चाहिए क्या, नहीं, इट शुड बी नेगेटिव, नेगेटिव भी साइन हो सकता है, कि ऐसा नहीं कि पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर मिडल टर्म को नेगेटिव साइन है तो फैक्टर्स क्या आते हैं वो स्टडी करेंगे सेकंड क्वेश्चन में। ओके, लेट अस स्टार्ट द सेकंड। तो सेकंड क्वेश्चन हम ले रहे हैं, x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। मैंने कांस्टेंट टर्म का साइन एज इट इज रख दिया, बट नंबर चेंज कर दिया इसका, क्या चेंज कर दिया, 36 लिया, मिडल टर्म है माइनस 30। ओके, तो अगर कांस्टेंट टर्म को मिडल पॉजिटिव साइन है तो कॉन्सेप्ट तो वही है, कॉन्सेप्ट नहीं चेंज हो सकता क्वेश्चन वाइज। कांस्टेंट टर्म के फैक्टर ले लो जिनका एडिशन आना चाहिए मिडल टर्म, करेक्ट। अब फैक्टर्स क्या आएंगे, 36 के 18 इंटू 2 अगर कर दिया तो वो आएगा, एडिशन आएगा 20। ओके, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, 6 6 36, एडिशन आ रहा है 12, देन वी टेक गेट द फैक्टर, तो हमको क्या मिलेगा फैक्टर्स, 9 4 36, 9 प्लस 4 इज 13, तो मिल गया हमको फैक्टर्स। क्या फैक्टर्स है, 9 एंड 4, फैक्टर्स क्या है, 9 एंड 4। अब मिडल टर्म को जो साइन है वो दोनों फैक्टर को साइन दे देगा। मिडल टर्म को अगर पॉजिटिव साइन है the both the factors having positive sign, if middle term has negative sign both the factors having negative sign, is that clear। कांस्टेंट टर्म का रोल क्या है, पॉजिटिव साइन अगर कांस्टेंट टर्म तो उसके फैक्टर लेना है जिनका एडिशन आना चाहिए मिडल टर्म, एडिशन आना चाहिए मिडल टर्म। अगर मिडल टर्म को पॉजिटिव साइन है तो दोनों फैक्टर को पॉजिटिव साइन, मिडल टर्म को अगर निगेटिव साइन है तो दोनों फैक्टर्स को निगेटिव साइन। इज दैट क्लियर। ओके, तो एडिशन 13 आ गया, फैक्टर्स के मिल गए 9 एंड 4, और मिडल टर्म को निगेटिव साइन है, क्योंकि मिडल टर्म को निगेटिव साइन है तो 9 एंड 4 दोनों को साइन क्या रहेगा, करेक्ट, निगेटिव रहेगा। सो यू टेक इन द फैक्टर्स दैट आर द therefore x square minus 9x minus 4x plus 36 is equals to 0. Are you got it? Okay, these are the factors. Then take the x common, therefore x in bracket x minus 9, taking minus 4 common from these two, ये फर्स्ट होगा ये सेकंड है, minus 4 in bracket x minus 9 is equals to 0. So okay, again we taking the x minus 9 common, so x minus 9 what remain, x minus 4 is equals to 0. Again product of these two bracket is 0, so इसका मतलब first bracket should be 0 और second bracket should be 0. x minus 9 is equals to 0 और
x minus 4 is equals to 0. If x minus 9 is 0, what is the value of x? 9. और x minus 4 अगर 0 है तो x का वैल्यू क्या है? 4. Therefore, the solution of the equation is 9 or 4. Are you got it? Write it carefully. Then we take in the next one. अगर कांस्टेंट टर्म को निगेटिव साइन है तो क्या करेंगे? कांस्टेंट टर्म के पॉसिबिलिटीज कितने साइन के? एक तो पॉजिटिव है तो मिडल टर्म का साइन का सवाल है. अगर मिडल टर्म को निगेटिव साइन है तो दोनों फैक्टर को निगेटिव साइन दे रहे. If constant term has positive sign, we taking the factors of constant term such that their addition is equal to zero. अगर मिडल टर्म को पॉजिटिव साइन है तो दोनों फैक्टर्स को क्या ले रहे हैं हम? पॉजिटिव साइन. मिडल टर्म को अगर निगेटिव साइन है तो दोनों फैक्टर को निगेटिव साइन. कब? कांस्टेंट टर्म को अगर पॉजिटिव साइन. अब सवाल ये है कांस्टेंट टर्म को अगर निगेटिव साइन है तो उसका स्टडी करेंगे. दो ही पॉसिबिलिटीज है. एक तो कांस्टेंट टर्म को साइन होगा पॉजिटिव या कांस्टेंट टर्म का साइन होगा निगेटिव. अगर पॉजिटिव है तो हमने स्टडी कर दिया कि फैक्टर्स लेना है, उनके एडिशन मिडल टर्म के साथ लेना है. अब सवाल मिडल टर्म के साइन का था तो मिडल टर्म को अगर पॉजिटिव साइन है तो दोनों फैक्टर्स को पॉजिटिव साइन. मिडल टर्म को निगेटिव है तो दोनों फैक्टर को निगेटिव. अब हम स्टडी करेंगे सेकंड पॉसिबिलिटीज की तरह. अगर कांस्टेंट टर्म को निगेटिव साइन है तो क्या करना है? तो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन. So again we taking the next one. X square. कोएफिशिएंट ऑफ x square 1 ही है. आज हम कोएफिशिएंट ऑफ x square 1 की बात करेंगे. कल हम rather than 1 स्टडी करेंगे. ओके. x square minus 8x. x square minus 8x minus 20 is equals to 0. क्वेश्चन क्या है? x square minus 8x minus 20 is equals to 0. Yes, student, see the carefully. क्या है कांस्टेंट टर्म को साइन? निगेटिव है. ओके. अगर कांस्टेंट टर्म को निगेटिव साइन है तो we have to take the factors of constant term such that subtraction of factors is equals to middle term. Yeah, we may say in another word, the difference between the factors is equals to middle term. I repeat it. If constant term has the negative sign, take the factors of constant term such that difference between the factors is equals to middle term. Is that clear? यहाँ पे constant term क्या है? 20. साइन क्या है? निगेटिव. तो 20 के ऐसे फैक्टर्स ले लो जिसका सब्ट्रैक्शन आना चाहिए 8. फैक्टर्स आर द 10 and 2. 10 2s are 20. 10 और 2 का डिफरेंस क्या है? What is the difference of 10 and 2? It is 8. अब सवाल ये है कि 10 into 20 तो 10 into 2 तो 20 होता है. 10 एक निगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा तभी निगेटिव 20 आएगा ना अपने को. तो हम क्या कर रहे हैं? सो अब सवाल ये है कि एक 10 को पॉजिटिव डिफरेंस सब्ट्रैक्शन करना है. 10 पॉजिटिव लेना है या 2 पॉजिटिव लेना है, या 10 निगेटिव लेना है या 2 निगेटिव लेना है. तो आपको क्या करना है? ग्रेटर फैक्टर को मिडल टर्म का साइन देना है. कांस्टेंट टर्म को अगर नेगेटिव साइन है तो कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स का डिफरेंस आना चाहिए मिडल टर्म. मिडल टर्म आ गए. अब सवाल है उनके साइन का. तो ग्रेटर फैक्टर जो है उसको मिडल टर्म का साइन दे दो. अगर मिडल टर्म को पॉजिटिव साइन है तो ग्रेटर फैक्टर को पॉजिटिव साइन. मिडल टर्म को निगेटिव है तो ग्रेटर फैक्टर को निगेटिव. ओके. सो मिडल टर्म को कौन सा साइन है यहाँ पे? निगेटिव. तो ग्रेटर फैक्टर को निगेटिव साइन देंगे. स्मॉलर फैक्टर का ऑपोजिट आएगा. -10 into 20. -10 into 2 is the -20. ओके. आई रिपीट इट. मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि ये कॉन्सेप्ट पे टोटल फैक्टराइजेशन डिपेंड है. आज हम टोटल फैक्टराइजेशन का स्टडी करने वाले हैं, कॉन्सेप्चुअल स्टडी करने वाले हैं. क्वेश्चंस तो सॉल्व करते ही रहे. ओके. कांस्टेंट टर्म को अगर निगेटिव साइन है तो उनके फैक्टर का डिफरेंस आना चाहिए मिडल टर्म. ओके. मिडल टर्म को जो साइन है वो साइन ग्रेटर फैक्टर को दे रहे हैं. इज दैट क्लियर? सो वी टेक इन द देन x square minus
10x प्लस 2x माइनस 20 के फैक्टर्स ले लिए जिनका डिफरेंस है 8 फैक्टर्स आ गए 10 एंड 2 ग्रेटर फैक्टर है 10 उसको मिडिल टर्म का साइन दे दिया नेगेटिव स्मॉलर फैक्टर को अपोजिट साइन देना है। इज दैट क्लियर होगा यहाँ तक। देन टेकिंग द x कॉमन x minus 10 okay we need the x minus 10 take the minus 2 common if you taken the minus number common from the term that you studied in 9th standard but I repeat it the sign of every term get change okay minus 2 common लिया है हमने यहाँ पे तो हम क्या करेंगे सॉरी प्लस 2 कॉमन लिया है तो हम क्या करेंगे x minus 10 as it is sign not change here we taken the plus 2 common we need the x minus 10 so we taken in first bracket x minus 10 second bracket x plus 2 is equals to 0 is that clear so product of two bracket is 0 so first bracket should be 0 so x plus 10 is equals to 0 or x plus 2 x minus 10 x plus 2 is equals to 0 the x minus 10 is 0 what is the value of x 10 or x plus 2 is 0 what is the value of x minus 2 therefore the solution is x is equals to 10 or x is equals to minus 2 have you got it अगर constant term को negative sign है I deliberately repeat it जानबूझ के repeat कर रहा हूँ कि आपके दिमाग में fit होना चाहिए तो constant term को negative sign है तो constant term के factors ले लो जिनका difference आना चाहिए middle term अब greater factor को middle term का sign देना है smaller factor को opposite sign देना we're taking the one more question so we're taking one more question there again x square plus 12x okay x square plus 12x minus 60 is equals to 0 16 नहीं 45 नहीं 45 is equals to 0 x square plus 12x minus 45 is equals to 0 ये क्वेश्चन ले लिया हमने अब कांस्टेंट टर्म को साइन कौन सा है x square plus 12x minus 45 is equals to 0 हमको खाली कॉन्सेंट्रेट करना है कांस्टेंट टर्म के साइन पे कांस्टेंट टर्म उसका साइन कांस्टेंट टर्म उसका साइन कांस्टेंट टर्म उसका साइन ओके कांस्टेंट टर्म 45 उसका साइन है माइनस नेगेटिव अब कांस्टेंट टर्म को अगर नेगेटिव साइन है तो उनके फैक्टर का सब्ट्रैक्शन आना चाहिए मिडिल टर्म और हमने इससे पहले स्टडी किया जस्ट टू स्टडी इफ कांस्टेंट टर्म हैज पॉजिटिव साइन सम ऑफ फैक्टर इज इक्वल्स टू मिडिल टर्म यहाँ पे नेगेटिव है तो डिफरेंस ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल्स टू मिडिल टर्म तो इसके फैक्टर्स क्या लेंगे हम फैक्टर्स आर 15 into 3 53 are 45 53 are 45 and difference of them is 12 15 minus 3 is equals to 12 अब सवाल ये है 15 और 3 में ग्रेटर फैक्टर कौन सा है 15 स्मॉलर फैक्टर कौन सा है 3 तो ग्रेटर फैक्टर को साइन क्या आना चाहिए क्या आना चाहिए क्या आना चाहिए करेक्ट मिडिल टर्म का आना चाहिए मिडिल टर्म को पॉजिटिव साइन है तो 15 को पॉजिटिव और 3 को अपोजिट साइन दैट इज नेगेटिव इज दैट क्लियर गुड ओके सो आप लिख सकते हैं कॉन्सेप्ट इज क्लियर सो टेकिंग देयरफॉर x स्क्वायर हमको क्या मिल गया पेयर ऑफ फैक्टर्स 15 एंड 3 15 को मिडिल टर्म का साइन दैट इज द 15x minus 3x स्मॉलर फैक्टर को अपोजिट साइन minus 3x minus 45 is equals to 0 taking the x common again x plus 15 taking the minus 3 common यहाँ पे है जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में minus 3 common निकाले if you take the minus 3 common sign get change minus convert into plus 15 3s are 45 3 कॉमन निकाला है तो 15 ही बचेगा माइनस कन्वर्ट इनटू प्लस 15 is equals to 0 so you get the first bracket again we taking the x plus 15 common x plus 15 first bracket x minus 3 second bracket and product of these two bracket is 0 if product of two terms are 0
either first one is 0 or second one is 0. So x plus 15 is equals to 0 or x minus 3 is equals to 0. If x plus 15 is 0, x is equals to plus 15 convert into minus 15, or x is equals to minus 3 convert into plus 3. Therefore, the solution set of the given equation is minus 15 or 3. Are you got it? हमने क्या कॉन्सेप्ट स्टडी किए हैं? 4 कॉन्सेप्ट स्टडी किए. मेन बेसिक 2 ही कॉन्सेप्ट है, उसके सब कॉन्सेप्ट बना दिए. अगर कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 है तो कांस्टेंट टर्म को एक तो पॉजिटिव साइन हो सकता है या निगेटिव हो सकता है. अगर कांस्टेंट टर्म को पॉजिटिव साइन है तो कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स लेके उनका एडिशन आना चाहिए मिडल टर्म. ओके. अगर मिडल टर्म को निगेटिव साइन है तो दोनों फैक्टर को निगेटिव साइन, मिडल टर्म को पॉजिटिव साइन है तो दोनों फैक्टर को पॉजिटिव साइन. इज दैट क्लियर? अब कांस्टेंट टर्म को जब निगेटिव साइन है तो वी हैव टू टेक द फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म such that their difference is equals to the middle term. Their difference is equals to the middle term. अगर middle term को पॉजिटिव साइन है तो ग्रेटर फैक्टर को पॉजिटिव साइन देगा, स्मॉलर फैक्टर को निगेटिव. अगर मिडल टर्म को निगेटिव साइन है तो ग्रेटर फैक्टर को निगेटिव साइन देगा, स्मॉलर फैक्टर को अपोजिट साइन. इन शॉर्ट, इफ द कांस्टेंट टर्म हैज द नेगेटिव साइन, टेक द फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म such that their difference is equals to middle term. What is the sign for the middle term? Take that sign for the greater factor, smaller factor for opposite side. I think we get the concept easily clear. Is that? मुझे लगता है कि आपके concept clear होंगे. You may write in a comment, sir, concepts clear. It's very simple and interesting. Okay, you may write it. Please write it. Okay, so enjoy it carefully. Do it properly. I will give you some questions. You have to solve that questions. Further questions we will discuss in the next lecture. Be focused. Okay, don't forget your target. Do the study regularly. Have a good day. Thank you.